करते हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, सुनाई दे रहा है सबको? गुड हेलो। आफ्टरनून सर। Yes, sir. ओके बेटा, स्टार्ट करेंगे। Good afternoon, sir. ओके, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे बेटा? वी हैव स्टार्टेड स्ट्रेट लाइंस, राइट? Okay, last class में we have seen the concept of inclination, theta, and slope denoted by m, which is tan theta. सही है? यहाँ तक समझ है ना लास्ट क्लास में हमको? सो आगे जाएंगे, रेस्पॉन्ड करिए। यस सर। ओके, Yes, sir. so the next concept is slope of a line joining 2 points. Slope of a line joining 2 points. मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जो ए बी को ज्वाइन करते हैं। A is x1 y1, B is x2 y2. So if you have 2 points, we know that you can draw a straight line through the 2 points. सही है? अब इस लाइन का कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है ना, इस डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए ही हम इंक्लिनेशन एंड स्लोप यूज करते हैं। So if you have 2 points, obviously the line is fixed. Once the line is fixed, the direction of the line is fixed. इसको आप extend किया तो if you extend this line makes some angle theta with x-axis. सही क्या नहीं? So इस theta का tan theta निकालना है आपको. So can you find the tan theta using these points, using the coordinates of these 2 points? The answer is yes. थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। Horizontal line is parallel to x-axis, right? So if this angle is theta, this angle is also theta. सही है? So इसका tan निकालो या इसका tan निकालो, दोनों तो सेम है। So tan theta, if this point is P, can I say that tan theta is nothing but BP by AP, right? So BP is nothing but, ये तो y2 minus y1 होता है ना। So यहाँ से यहाँ तक y2, यहाँ से यहाँ तक y1, y2 minus y1. What is AP? AP is x2 minus x1. x2 minus x1, okay? So what is tan theta? Tan theta is nothing but y2 minus y1 by x2 minus x1. So this is the formula for slope of line joining 2 points. Easy है? For example, so if you have points 2, 3 and B 5, 7. So what is the slope of line joining these 2 points? So slope is nothing but difference in y coordinates. कितना है difference in y coordinates? 7 minus 3 divided by difference in x coordinates 5 minus 2, that is equal to 4 by 3. समझ में आ रहे? क्लियर है क्या नहीं? यस सर। आप चाहिए तो इस तरफ से इस तरफ भी माइनस कर सकते हैं। देयर इज नो नेसेसिटी दैट इसमें से ये माइनस करना है।
चाहिए तो आप 3 - 7/2 - 5 भी कर सकते हैं। x1 y1 - y2/x1 - x2 भी कर सकते हैं। -4/-3 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यू गेट 4/3। ओके, बट व्हाट यू शुड नॉट डू इज, अगर 7 - 3 किया तो 2 - 5 नहीं कर सकते। y कोऑर्डिनेट्स के लिए एक डायरेक्शन में माइनस किया, x कोऑर्डिनेट्स के लिए कुछ और डायरेक्शन में माइनस किया, तब आंसर गलत आएगा। ओके, सिंपल। स्लोप पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया, राइट। Positive. एंड लास्ट क्लास में हम देखे हैं, if the line is in this direction, if the line makes an acute angle with x-axis, the slope is positive. समझ में आ रहे? If the line makes obtuse angle with x-axis, the slope is negative, right? And आप ये दोनों पॉइंट्स को approximately plot कर सकते हैं। 2, 3 will be somewhere here, 5, 7 will be somewhere here. आप join किया तो आप देख सकते हैं this line is making an acute angle with x-axis, so slope positive makes sense. Okay, clear? Yes, sir. नोट कर लीजिए, आगे जाएंगे। नोट किया? Yes, sir. So next question, a is 5, 4, b is 7, 2. फर्स्ट हम प्लॉट करेंगे। so 5, 4 will be somewhere here, roughly मैं प्लॉट कर रहा हूं। ओके, 5, 4। नेक्स्ट पॉइंट इज 7, 2। 7 का मतलब थोड़ा सा आगे गया, 2 y कोऑर्डिनेट वाइज थोड़ा सा नीचे है, x कोऑर्डिनेट वाइज थोड़ा सा राइट साइड में है। ओके, दिस इज मान लीजिए a, दिस इज b। एज यू कैन सी, इफ यू जॉइन दीज 2 पॉइंट्स, ये x एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं ना, राइट? सो यू आर एक्सपेक्टिंग ए नेगेटिव स्लोप। देखिए Yes, आ रहा sir. है क्या नहीं? m is equal to y2 minus y1 2 minus 4 divided by x2 minus x1 7 minus 5, that is equal to -2 divided by +2, -1 आ गया। क्लियर? so what is the slope? slope is -1। okay, क्लियर है क्या नहीं? yes or no? Yes, sir. so once you have the slope, आप inclination भी निकाल सकते हैं। slope का मतलब tan theta is equal to -1, so theta is equal to how much? 135 degrees. कितना? 135 degrees. 135. 5 degrees। okay, क्लियर है? इस बार -1 is a standard number, that's why you got the inclination very nicely। यही क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा, तो प्रीवियस क्वेश्चन में स्लोप कितना आया? 4/3। दिस इंप्लाइज 57 degree. tan theta is equal to 4/3, so theta is equal to कितना? Sir, 53 57. 50, 53 degree. हाँ 53 राइट, degrees. ये फिजिक्स में आप Yes, देखे हैं sir. ना। बट 53 डिग्रीज, इज इट एन अप्रोक्सीमेट आंसर और एन एग्जैक्ट आंसर? Approximate. अप्रोक्सीमेट आंसर है ना, ये पता है क्या नहीं?
Yes, sir. tan 57 डिग्रीज है ना, या 53 है? Sir, 53. Tan 53 degrees is approximately 4/3, not exactly 4/3, right? But maths में हम 53 degrees नहीं लिखेंगे. What will be right here? Theta is equal to simply tan inverse of 4/3. समझ रहे? tan इस तरफ गया तो वो इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3. ओके, क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. इजी, आगे जा सकता हूं? तो आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन represents rate of change of y with respect to x on a line. Try to understand so try to understand this sentence. इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, as you move from one point to another point, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 है. as you move from this point to this point, आपका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, राइट? स्लोप क्या है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट. सो दो चेंजेस का रेशियो को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल. सही है क्या नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना? क्लियर है? सो स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? सो नाउ आई विल ड्रॉ टू लाइंस. एक लाइन ये है, एक लाइन ये है. दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2. इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है. कैन यू कंपेयर m1 एंड m2? कौन सा नंबर ज्यादा होगा? Just by seeing them, can you find whose slope is more than the other? m2 बड़ा होगा या m1 बड़ा होगा? Anybody? बोल सकते हैं आंसर? M2 बड़ा होगा. है ना? आप ध्यान से देख लीजिए. एक तरीके से देखा तो इसका tan बड़ा है ना, थीटा ज्यादा है तो tan थीटा भी ज्यादा होगा, राइट? सो मोर द इंक्लिनेशन, मोर द स्लोप. क्लियर है क्या नहीं? और एज यू कैन सी, आप इसको दो रोड मान सकते हैं. कौन सा रोड में जाना, कौन सा रोड में दौड़ना मुश्किल है? मान लीजिए दौड़ रहे हैं आप, कौन सा रोड में दौड़ना मुश्किल है? अगर राइट साइड जा रहे हैं तो सेकंड लाइन में दौड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है. ओके, एज यू गो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज मोर विथ रेस्पेक्ट टू x. क्लियर है कि नहीं? तो Yes, जैसा sir. हमारा नॉर्मल Yes, sir. फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्लोप जैसा है, मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी लगभग वैसा ही है. ओके, क्लियर? इजी.
as we have seen, there are two types of slopes, positive slope and negative slope. सही है कि नहीं? Positive slope versus negative slope. So as you can see, देखिए पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप के बीच में डिफरेंस इतना ही है, ये L1 है, ये L2 है, दोनों देखने में सेम स्लोप लग रहे हैं फिजिकल सेंस में. देखिए इफ यू थिंक ऑफ दिस फिजिकली, मान लीजिए इसके ऊपर चढ़ने में जितना एफर्ट लगेगा, इसके ऊपर चढ़ने में भी उतना ही एफर्ट लगेगा ना. अगर मान लीजिए ये वाला एंगल सेम है, मान लीजिए ये भी 30 डिग्रीज है, ये भी 30 डिग्रीज है. फिजिकली इफ यू सी बोथ द स्लोप्स आर सेम, बट लाइंस का डायरेक्शन अलग है, राइट? इस लाइन में एज यू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है. सही है? राइट साइड मूव होने का जरूरत मतलब क्या है? इफ यू आर मूविंग राइट, दैट मींस योर x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, राइट? सो इस लाइन में आप राइट साइड जा रहे हैं तो आप ऊपर उठ रहे हैं, राइट? इस लाइन में आप राइट साइड जा रहे हैं तो नीचे गिर रहे हैं, राइट? So if you move right, if you are going up, on moving right, if you are going up, we say that the slope is positive. Clear? On moving right, if you are going down, then slope is negative. जब तक ये दोनों एंगल सेम होता है, नंबर वाइज बोथ दी न्यूमेरिकली बोथ एम्स आर सेम, जस्ट एक का पॉजिटिव साइन होगा, दूसरे का नेगेटिव साइन होगा. ओके, आप नंबर्स के हिसाब से भी देख सकते हैं. इफ दिस इज 30 डिग्रीज, व्हाट इज द स्लोप? 1/√3, राइट? इफ दिस इज 30 डिग्रीज, ये वाला एंगल कितना होगा? 150 degrees. So slope is tan 150 degrees, that is equal to -1/√3. Okay, clear है क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So slope is, अगर physically if the rate of change of y is same as rate of change of x, sorry, if the rate of change of y with respect to x of this line and this line are same, numerically the values of slopes will be same. ये प्लस माइनस सिंबल्स क्या है? These are just to denote whether on increase of y x is increasing or decreasing. Clear है? याद है? क्लियर? Slope of horizontal line, slope of vertical line. Slope of horizontal line कितना होगा? Any guesses? 0. Zero. Zero है ना, क्योंकि थीटा 0 है, m is equal to tan 0 is 0. Slope of vertical line, Not vertical defined. line का inclination 90 degrees, so slope is equal to infinity बोलते हैं. Okay, that is undefined or infinity. Okay, प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा? ठीक है, प्लस और माइनस इन्फिनिटी इन द लिमिट. अगर लिमिट के हिसाब से अगर देखा तो आप देख सकते हैं, if you think of this as a limit theta tends to 90 degrees, tan theta है ना हमको चाहिए, सही कि नहीं? हमको स्लोप चाहिए as theta tending to 90 degrees. अगर π/2 प्लस में देखा तो π/2 प्लस अगर लिया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है ना, π/2 प्लस, सो इस आएगा. π/2 से थोड़ा सा छोटा नंबर लिया, प्लस इन्फिनिटी आएगा. If you think about it as a limit, so slope of vertical line is infinity बोल देते हैं, बट अगर लिमिट वाइज देखा तो प्लस और माइनस इन्फिनिटी दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग वेदर इट इज गोइंग फ्रॉम द राइट साइड और लेफ्ट साइड. ओके, ऐसे देखा तो अनडिफाइंड इज आल्सो ए राइट आंसर. क्लियर? क्लियर है?
Yes, sir. नेक्स्ट निकाल रहा हूं ये पेज, नोट किया? नोट किया? Yes, sir. Next concept is angle between two lines. Assume that you have two lines. Okay. This is, for example, line 1, this is line 2. So the angle between lines is this. यही है ना, angle between the lines, right? So if you take any two lines, there will be two angles between the two lines. देखिए ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, अगर देखा तो, राइट और रॉन्ग? This is also the angle between two lines. This is also angle between two lines. है कि नहीं? How do you distinguish between these two? अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ ये वाला आंसर चाहिए, what should be the question that I have to ask you? If I ask you what is the angle between two lines, ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है ना? But if I want only this answer, how should I modify the question? Any suggestions? What is the dash between these two lines? वो dash में क्या fill करना है मुझे? Anybody? What is the Smallest angle. what is the smallest angle बोल सकता हूँ? What is the acute angle बोल सकता हूँ? Yes. यूजुअली क्या होता है, दो लाइंस के बीच में दो एंगल्स है तो एक एक्यूट होता है यूजुअली, एक ऑब्ट्यूज होता है. अदरवाइज बोथ विल बी 90 डिग्रीज. अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों राइट एंगल्स हो सकते हैं, नहीं तो एक एक्यूट होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा. ओके, सो थीटा इज व्हाट? एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2. सही है क्या नहीं? व्हाट इज अल्फा? ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज स्पेलिंग सही है कि यस होता है? ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन L1 एंड L2. एक पता है तो दूसरा आ जाएगा या नहीं आएगा? Is there any relation between theta and alpha? 180 degree. 180 degree. 180 degrees. सही क्या नहीं? So if I want the angles between two lines, so दोनों लाइंस का मान लीजिए मुझे डायरेक्शंस पता है. I know the direction of these two lines. डायरेक्शन पता होने का मतलब है दोनों के इंक्लिनेशंस पता है. ओके, assume that I know the inclinations of these two lines. ओके, ये थीटा 1 है, मान लीजिए थीटा 2. लाइंस के बीच में अगर एंगल पता होना है मुझे, लाइंस के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना? सही क्या नहीं? So assume that I know the directions of these two lines. That is, I know the inclinations. Or easily assume that I know the slopes of these two lines. इसका slope m1 है, इसका slope m2 है. Okay. Theta 1 and m1 are related to each other. सही है कि नहीं? m1 क्या होता है? m2 क्या होता है? m1 is tan, m2 is tan theta 2. Okay. Clear है? Right? Yes, sir. So आप से एक क्वेश्चन है, इस डायग्राम से अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा या नहीं? And from this Yes, sir. diagram, this theta 1 is the exterior angle of this triangle, right? So Yes. theta 1 is equal to theta 2 plus theta लिख सकता हूँ? Yes, sir. This implies theta is equal to theta 1 minus theta 2 लिख सकता हूँ? Okay. Yes, sir. Yes, sir.
So can I write tan theta is equal to tan of theta 1 minus theta 2? This implies tan theta is equal to a minus b का फॉर्मूला क्या है? tan a minus tan b divided by 1 minus a tan b. सही है? क्लियर है क्या नहीं? But what is tan theta 1? m1 minus m2 by 1 plus होता है ना नीचे? tan theta a minus b is tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b. 1 plus m1 m. सही है? क्लियर है क्या नहीं?